Hello dear students, I am Santosh Tange and welcome to my YouTube channel. From today we are starting our second chapter of history, Historiography Indian Tradition. This is very an important chapter for your school examination as well as board examination. Student, this chapter is divided into two parts. 2.1 Tradition of Indian Historiography and 2.2 Indian Historiography Various Ideological Frameworks. हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को हमें दो पार्ट में पूरा पढ़ना है। पहला पार्ट है ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। इन दिस पॉइंट वी विल लर्न अबाउट historiography in the ancient period, historiography in the medieval period and historiography in the modern period. Then second part is 2.2 Indian historiography various ideological frameworks. In this point we will learn about colonial historiography, orientalist historiography, nationalistic historiography and historiography in the post-independence era. In that point, Marxist history, subaltern history, feminist history is important. So, dear students, in the first lesson, we introduced the Western tradition of historiography. Now, in this lesson, we will learn about the tradition of Indian historiography. So, let's start. Our chapter number 2 हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर में हमने हिस्टोरियोग्राफी के वेस्टर्न ट्रेडिशन की पूरी जानकारी ली है। हिस्टोरियोग्राफी की जो भारतीय परंपरा है, इतिहास लेखन की भारतीय परंपराओं का अध्ययन करने वाले हैं। हिस्टोरियोग्राफी के भारतीय परंपराओं का क्लासिफिकेशन 3 पीरियड में किया गया है: एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। सबसे पहले हम हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशियंट पीरियड देखने वाले हैं। द एंशियंट पीरियड इन इंडिया मेमोरीज ऑफ द ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स एंड माइथोलॉजिकल लोअर also memories of social transactions were preserved with the help of oral recitals। प्राचीनतम भारत में जो भी सारे एंसेस्टर्स ने पराक्रम किए हैं या अच्छे काम किए हैं, उनकी यादें या जो माइथोलॉजिकल लोअर मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी यादें या जो भी सोशल ट्रांजैक्शंस, सोशल चेंजेस होते थे, इन सारी यादों को प्रिजर्व करके रखा जाता था बाय ओरल रिसाइटल्स द्वारा। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओरली याद रखी जाती थी। इन सारी यादों को ओरली प्रेजेंट किया जाता था, वेरिएंट किया जाता था और उसके बाद में जनरेशन टू जनरेशन ओरली इन सारी चीज़ों को, इन सारी यादों को याद में रखा जाता था, क्योंकि उस वक्त कोई भी राइटिंग मेथड या लिखने की परंपरा, राइटिंग ट्रेडिशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी या अस्तित्व में नहीं थी। द इंस्क्रिप्शंस ऑन द हड़प्पन सील्स and other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing as early as the 3rd millennium before Common Era or perhaps before that. However, the Harappan script is not yet successfully deciphered. It means, according to ancient inscriptions found in the Harappan culture, the art of writing in India seems to have existed in the 3rd millennium before Common Era or even earlier, but the Harappan script has not yet been read। इसका मतलब हड़प्पन सील्स और अदर आर्टिफैक्ट्स में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो ये कंफर्म करते हैं कि हमारे भारतीय लोग आर्ट ऑफ राइटिंग में मास्टर्स थे। मतलब उनको आर्ट ऑफ राइटिंग का पता था, लिखने की कला वो जानते थे।
ऐसा हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन में जो सबूत मिले हैं उसके ज़रिए हम कह सकते हैं। हमारे भारतीय लोगों को आर्ट ऑफ राइटिंग लगभग 3000 साल पहले से या उससे भी पहले से पता थी, ऐसा सबूतों के ज़रिए प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी आज तक हम ये हड़प्पन स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाए या हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या बताया गया है, ये हम पढ़ नहीं पाए या उसमें हमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। The earliest known written documents of historical nature found in India are in the form of inscriptions. They are dated to the 3rd century before Common Era, that is Emperor Ashok Maurya's time. His edicts are inscribed on natural rocks and stone pillars. It means the oldest written history of India is in the form of carving dating from the time of the Mauryan Emperor Ashoka in the 3rd century before Common Era. Emperor Ashoka carving are carved on the stone pillars. His edicts are inscribed on natural rocks and stone pillars. भारत में सबसे प्राचीन हिस्टोरिकल रिटन डॉक्यूमेंट्स जो मिलते हैं वो इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में मिलते हैं और इन सारी इंस्क्रिप्शंस की शुरुआत होती है मौर्य सम्राट अशोक के कालखंड से, मतलब 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन इरा। और ये सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं नेचुरल रॉक्स पे या स्टोन पिलर्स पे। In the 1st century Common Era, inscriptions begin to occur on coins, metal images and sculptures and also on copper plates. They provide important historical information. इसका मतलब पहली सदी से इंस्क्रिप्शंस बनाने के लिए कॉइन्स, मेटल इमेजेस और स्कल्पचर और कॉपर प्लेट्स का यूज किया गया। इसका इस्तेमाल किया गया इंस्क्रिप्शंस बनाने के लिए या निकालने के लिए, और इनके द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस बनाए गए हैं या इन पे जो इंस्क्रिप्शंस बनाए गए हैं उसके जरिए हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। ये सारी चीजें हमें इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। We get to know about the dates of various kings, dynastic genealogies, territorial extent and administration of various empires and kingdoms, and also important political events, social organization, climate, famine, etc. on the respective times. It means all these types of inscriptions give information about important periods like the time of respective kings, genealogy, expansion of the state, it means territorial extent or regional extent, and important system of government, it means administration, and also important political events, social organization, climate, famines, etc. इसका मतलब इन सारी इंस्क्रिप्शंस की वजह से या इनके द्वारा हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि अलग अलग राजाओं का कालखंड या उनकी डायनेस्टिक जीनियोलॉजी है, उनके एंसेस्टर्स हैं, उनका ईरा है, या टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब एक्सपांशन ऑफ रीजन है, देश का विस्तार या उस प्रदेश का प्रशासन किस तरह से अलग अलग राजाओं ने चलाया, इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाइमेट है, फेमिन इट मीन्स ड्रॉट है जिसे हम अवर्षण या अकाल कहते हैं, जिसे मराठी में दुष्काल ऐसा कहते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमें इंस्क्रिप्शंस के द्वारा पता चलता है या जानकारी मिलती है।
Ancient Indian literature including the epics Ramayana and Mahabharata, Puranas, Jain and Buddhist texts, historical accounts by the Indian authors, and also travelogues by foreign travelers are important sources of history. It means in ancient Indian literature, the epic Ramayana and Mahabharata, the ancient Jain and Buddhist text, historical text written by Indian writers, as well as travelogues of foreign travelers are considered important tools for historiography. इसका मतलब हिस्टोरियोग्राफी करने के लिए हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस हैं उनमें प्राचीनतम भारत के साहित्य का समावेश होता है। उन साहित्यों में रामायण तथा महाभारत यह महाकाव्य आते हैं, पुराण आते हैं, जैन और बौद्ध धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनका समावेश होता है। भारतीय साहित्यकारों ने जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स या लिटरेचर या टेक्स्ट लिखे हैं उनका समावेश होता है, तथा जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने ट्रैवलॉग्स, जिसे हम प्रवास वर्णन कहते हैं, वो लिखे हैं। इन सारी चीज़ों का समावेश प्राचीन भारत के लिटरेचर में किया जाता है, जिनके द्वारा हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट